part of this is not true, but converse is not true, but contrapositive. Statement of this, that is, limit n tends to infinity, an is not equal to 0 implies summation an is not convergent. We have seen this very important result in our last class also. Now, let us see one of the very important series which is very much helpful. Summation 1 by n to the power p, where this n is the iterative natural number and p is a constant. How it will look like? This is 1 by 1 to the power p plus 1 by 2 to the power p, 3 to the power p, 4 to the power p plus dot dot dot. This is the infinite series. So let's see the behavior of this summation 1 by n to the power p. So as it is dependent on natural number n and this p constant, we will see three different cases for p when it is greater than 1, when p is greater than 1, and to the power p. So this summation n 1 by n to the power p is equal to 1 by 1 to the power p plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus 1 by 4 to the power p plus 1 by 5 to the power p, 6 to the power p, 7 to the power p plus 1 by 8 to the power p and dot 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 up to 15 to the power p. And likewise, we can club this series in such a format that we can get a successful result. Means I am taking one term separately, 2 terms separately, 4 terms, then 8 terms, and likewise. Now, clearly, this series is obviously less than 1 to the power p plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 4 to the power p, 4 to the power p, and likewise, I am replacing term by term 3 to the power p with this. So this term will obviously be greater than this term, and similarly this term I am substituting 5, 6, 7 for 4, 4, 4 to the power p. So this term, the addition of this term will obviously be greater than this term. So that's why I am putting here a greater sign, and similarly 1 by 8 to the power p plus dot 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 dot. Okay. Now we can easily add this. This term is equal to 1 by 1 to the power p plus 2 by 2 to the power p, 4 by 4 to the power p, 8 by 8 to the power p, and likewise we can write this. And see, this is in the form of geometric series. We have already seen the geometric series, the behavior of that. We have here a common ratio of 2 by 2 to the power p, which is equal to 1 by 2 to the power p minus 1. And since for any value of p, if we take greater than 1, this value will always be less than 1. Okay, for all p greater than 1. Okay, so as we already know that for any geometric series, if the common ratio is less than 1, we have seen in the revision also, then this series will be
कन्वर्जेंट। सो एक चीज यहाँ देखने वाली बात है कि हमने स्टार्ट किया था इस सीरीज से, इसे कन्वर्ट किया एक सुटेबल सीरीज में जिससे हम समेशन कर सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में। अब क्या है कि दिस इज अ बिगर सीरीज देन दिस, व्हाई, बिकॉज़ दिस इज विद अ ग्रेटर देन साइन। अगर हमारे पास कोई बड़ा सीरीज है, व्हेन वी हैव अ वेरी greater bigger series than our problem series, and we know that this bigger series is convergent, okay, this bigger series is convergent, then obviously the smaller series will also be convergent. There is a result which is called comparison of infinite series। मतलब कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सीरीज है टर्म बाय टर्म, अगर उस बड़े वाले सीरीज के जो टर्म्स हैं वो छोटे वाले सीरीज से अगर बड़े हैं तो, और अगर बड़ा वाला सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियसली छोटा वाला भी सीरीज कन्वर्जेंट होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर कोई बड़ा है वो अगर मतलब कन्वर्ज कर रहा है तो उससे जो छोटे होंगे वो कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस इन आवर केस फॉर p greater than 0 it is convergent, okay। Let me proceed to the next case, case number 2। for this infinite series 1 by 1 n to the power p, when p is equal to 1, p is equal to 1 means it is, we have to check whether this summation 1 by n, which is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 1 by 4, whether this is convergent or not। Here also we can plug it in the form of 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7, and dot dot dot. Here we will club 1 by 8 and plus dot dot. Suitably like this, and we will left with 1 by 2. This series is greater than, yes, the previous series is greater than 1 plus 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 8 plus dot dot dot, 1 by 8 plus 1 by 16 and likewise. So see, we are here separating from the third term and likewise, and I replace 3 with 4. So therefore 1 by 4 plus 1 by 4 is obviously greater than 1 by 3 plus 1 by 4. You can do this exercise and see. So जो हमारा previous series है, this is greater than our next manufactured series, okay। Now let us see what is the fate of this constructed series 1 plus 1 by 2. This becomes 1 by 2, this also becomes 1 by 2 plus dot dot dot। अब देखिए यहाँ पर 1 में हम हाफ ऐड करते जा रहे हैं अप टू इंफिनिटी। अगर 1 में अगर ऐड करते गए तो this is obviously not going to converge to any finite value, so it is divergent, okay। So this series is divergent। Now अब एक बात देखते हैं कि हमने जो बनाया अपना सीरीज वो दरअसल छोटा है हमारे प्रॉब्लम सीरीज से, जो हम जिसे लेके चले थे। तो अगर कोई छोटा सीरीज अगर डाइवर्ज कर रहा है मतलब इंफिनिटी पे जा रहा है तो इससे जो बड़ा सीरीज है वो भी इंफिनिटी पे जाएगा। सो हियर आल्सो दिस समेशन 1 by n is divergent। For this case we have said this is divergent। Now the third and the final case, when p is less than 1, so we have to see this summation. In fact, we can see this here also. If you consider this equation as
स्टार इक्वेशन। यहां पर अगर हम n टू द पावर p जो है p लेस देन when p is less than 1, अगर यहाँ पे p लेस देन 1 करें तो इसके जो सारे टर्म्स हैं that will be greater than those of the terms which are written down with this 1 plus 1 by 1 to the power p, 2 to the power p, 3 to the power p and likewise। अगर p का वैल्यू अगर 1 से छोटा है और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल लेते हैं 1, this is 2। I hope you can see the below series also, 1 by 1 to the power p, 1 by 2 to the power p, likewise, or otherwise let me write in the next page। We have just seen that this series summation 1 by n is divergent, okay, and for p is less than 1, 1 by 1 to the power p, 2 to the power p, 3 to the power p, term by term this will be less than 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and likewise। Sorry, if we take p is equal to half, let us suppose, so 2 to the power half root 2 root 3, this will be greater, okay, you can substitute the value p equal to half or p equal to 1 by 3 which is less than 1। You can see term by term 1 by 2 to the power half will be less than greater than 1 by 2 and likewise, so the whole series will be greater than this। We have already seen that this series is divergent, so अगर हमारे पास छोटा वाला सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। So let us summarize our this result for summation 1 by n to the power p, n belongs to natural number and p is a constant, this is equal to, this is convergent for p greater than 1, divergent for p less than or equal to 1, okay। You have to remember this result to apply in solving or in evaluating the fate of an infinite series। So let us see some examples of this also। Let me erase this। See, अगर हमारे पास p greater than 1 है मतलब कि क्या हुआ, इसके एग्जांपल्स में क्या होगा 1 by 2 to the power 2, sorry n to the power 2 summation क्लास ले रहे। So for example this summation 1 by n square, 1 by n to the power 3, summation 1 by n to the power 3, or maybe any number which is greater than 1, these are convergent। For any number like this 1 by n to the power half, for summation 1 by n to the power 3 by 2, these are divergent from the obvious result concluded from our result, okay। You can note down this 1 by n square, summation 1 by n square, summation 1 by n cube, or any number p which is greater than 1, these are
infinite number of series we can construct out of this, which are all convergent. And for any number p which is less than 1, like half, 3 by, sorry, not 3 by 2, 2 by 3, this is supposed to be less than 1. So summation 1 by n to the power 2 by 3. Likewise, we can construct infinite number of infinite series which are divergent for the value of p less than 1. Okay. Now, this is a very useful result, which is for testing infinite series, and the method or scheme from which we can calculate estimate this is comparison test. It says if two series, two infinite series, summation un and summation bn be such that first summation Vn is convergent and second Un is less than Vn for all n belongs to natural number. We have two conditions, मतलब हमारे पास दो infinite series है Un और Vn, ठीक है, और it is such that जो हमारा बाद वाला सीरीज है summation Vn is convergent, it is given, and ये जो है हर एक टर्म जो Un का है that is less than Vn, मतलब U1 is less than V1, U2 is less than V2 and likewise, मतलब हर एक टर्म बाय टर्म जो है U1 का V से छोटा है. Collectively this implies that summation Un is convergent. Okay, मतलब कि हमने दो इनफाइनाइट सीरीज लिया, एक हमारा मतलब प्रॉब्लम सीरीज है जिसके बारे में पता करना है, दूसरा जो हमारा Vn है, Vn इज अ नोन सीरीज, हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और इन दोनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मतलब कि ये हमें पता है कि कन्वर्जेंट है, और हर टर्म अगर इससे छोटा है तो हम वी कैन कलेक्टिवली कॉल इट एज द कन्वर्जेंट सीरीज. ठीक है, एंड सेकंड दिस इज फर्स्ट second statement, if two series of positive terms summation Un and summation Vn be such that first summation Vn is divergent, and second every term of Un is greater than Vn for all n greater than n. Then अब देखो यहाँ पे सेम इसका उल्टा बात है, पहला हम क्या ले रहे हैं कि जो Vn है, दिस Vn जो हमारे पास जो सेकंड सीरीज है नोन सीरीज, वो हमें पता है कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है, और दूसरी बात हमारे अननोन सीरीज Un का हर एक टर्म जो है वो Vn से बड़ा है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास छोटा वाला जो सीरीज है द स्मॉलर सीरीज Vn इज डाइवर्जेंट, तो उससे बड़ा जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा. दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन टेस्ट, एंड वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दीस टू थिंग्स दैट समेशन Un is divergent also. ठीक है, इतना बस दिमाग में रखना है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई स्मॉलर सीरीज है, वी हैव अ स्मॉलर सीरीज एंड दैट इज डाइवर्जेंट, तो उससे बड़ा जो सीरीज होगा वो तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट होगा.
और in contrary to the statement of this, the first statement says that कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सीरीज जो है जो कि नोन है कि वो कन्वर्जेंट है, तो उससे जो छोटा होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा. We will see the application of these comparison tests in solving problems. Let me write one last limit form. Both the statements can be, the 1 and 2 can be collectively written down in the form of limit, and it says if two series of positive terms summation u1 and summation vn be such that limit n tends to infinity u1 by vn is equal to L and it is not equal to 0 and L is finite number, then summation un and summation vn converges or diverges together. मतलब क्या है कि इन दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग एक साथ करके लिख सकते हैं. कैसे? लिमिट फॉर्म में हमारे पास we have two series of positive terms summation un and vn. We have to calculate the limit n tends to infinity un by vn, and if it is came to be L, which is a non-zero finite number, okay, non-zero and finite number, then if vn is convergent, then un is convergent. If vn is divergent, then un is divergent. Let us see without spending too much time. I suppose it is understandable to everyone. Siddharth Sharma. Yes, Siddharth. मॉर्निंग सर. सर मुझे डाउट है कि सर जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे उस पे कि अगर an इक्वल्स 0 है तो हम लोग कन्वर्जेंट होगा. तो सर हम लोग 1/1 + 1/2 + 1/3 वाला सीरीज में तो nth टर्म तो 0 ही होगा ना सर? नहीं, nth टर्म 0 होगा वो ठीक है, लेकिन मतलब कि आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ये समेशन 1/n ले लें अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करें इसका nth टर्म कर ले 1/n है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर. सो हमने अभी डिस्कस किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले. यहां पर देखो कि अगर हमारे पास मतलब कि अगर कोई सीरीज है, अगर वो कन्वर्जेंट है तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं फिलहाल अभी. इज इट करेक्ट? हाँ सर. सिद्धार्थ, नाउ मैंने अभी कहा था कि द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है जो हमारे केस में है फॉर समेशन 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है we are not able to say anything about the series is convergent or divergent. Okay sir. The converse part is this. Okay, हाँ, अगर हमारे पास ऐसा हो जाता कि अगर हमारा ये not equal to 0 आता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि वो डाइवर्जेंट. क्लियर? हाँ सर. और सर अगर एक्स सीरीज से कंपेयर करें तो 1/n + 1/n टाइम्स आएगा तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सर ये सीरीज का सिग्मा 1/n का, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 1/n + 1/n + 1/n n टाइम्स. हाँ, तब तो कन्वर्जेंट आ जाएगा सर उस केस में. किससे कंपेयर करेंगे? 1/n + 1/n n टाइम्स. 1/n + 1/n n टाइम्स. हाँ, इस केस में जरा देख लीजिए, तुम कहना चाह रहे हो कि 1 + 1/2 + 1/3 जो है इसको हम कंपेयर करेंगे 1/n
प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n से, तो ये जो होगा वो ये छोटा होगा इससे ना। ओ हाँ, तब तो नहीं कंपेयर कर सकते। समझ रहे हो, कंपेयर करके देखो, वैसे ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। हाँ, तो कंपैरिजन नहीं पॉसिबल है सर। हाँ ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन n है इसीलिए। ओके सर। ओके ओके, सच्चिदानंद मुंडा, ये सच्चिदानंद मॉर्निंग सर। सर पूछ रहे थे कंपैरिजन टेस्ट में पता कैसे चलेगा सर यूएन कौन सा और वीएन कौन सा है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी आंसर यू, आई एम गोइंग टू म्यूट यू एंड आंसर योर क्वेश्चन। सच्चिदानंद has been asked that कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कंपेयर किससे करना और किसको करना है। ठीक है, हम लोग आ गए यहाँ अगेन लिमिट फॉर्म में। हमारे पास दो सीरीज है un और bn, हमें पता कैसे करना है कि मतलब कि किसको किससे कंपेयर करें। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया समेशन 1 बाय n टू द पावर p के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास इसके रिजल्ट के हिसाब से क्या था 1 बाय n टू द पावर 2, 1 बाय n टू द पावर 3, समेशन 1 टू द पावर n टू द पावर 4, और इस तरह से ये सारे कन्वर्जेंट हैं, ये नोन है। तो हम और दूसरी तरफ समेशन 1 बाय n टू द पावर हाफ, समेशन n by n to the power 1 by 3, summation 1 by n to the power 2 by 3, ये सारे डाइवर्जेंट है, ये हमें पता है। तो जो हमारे पास नोन सीरीज है इसी को हम लोग समेशन bn लेंगे। बात समझ में आया? और जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम जो है वो समेशन un की तरफ कंसीडर करेंगे कि हमारा ये अननोन सीरीज है un जो है हम इसके बारे में नहीं जानते। We will smartly select a special infinite series, whether it is convergent or divergent, such that जो comparison है उससे हम आराम से बता सके कि ये है। मतलब कि कैसे हमें वो स्मार्ट सिलेक्शन कैसे होगा कि हमें ये देखना है कि un by in the limit form un by bn limit n tends to infinity is equal to n not equal to 0 finite number। ठीक है, हमें ऐसा bn सेलेक्ट करना है such that ये लिमिट एग्जिस्ट करे, such that ये लिमिट एग्जिस्ट करे, और एग्जिस्ट करने के साथ हमें ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर देते हैं, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अब देखो हमारे पास bn का स्ट्रक्चर अगर ऐसा रहेगा तो सीधे कहेंगे कि un कन्वर्जेंट है, और अगर bn का स्ट्रक्चर अगर ऐसा रहेगा तो हम सीधे कहेंगे कि un जो है वो डाइवर्जेंट है। क्लियर? एनीवन एल्स? Let us see, it will be better understood by an example. See, test the convergence of the series summation n equal to 1 to infinity square root of n square plus 1 minus n. Okay, ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज का ये जनरल टर्म समेशन है। ठीक है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट un। व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ये हमारा जो है जनरल टर्म है इसका, एंड वी कैन राइट दिस एज समेशन un। सो un इज दिस। नाउ टेक n common from these two, it will become 1 plus 1 by n square minus 1. Okay, so let me write this as equal to, इसमें से अगर n कॉमन लेते हैं it will be 1 plus 1 by n to the power half minus, लिख सकते हैं इसको, and we can expand in binomial expansion as 1 by 1 plus 1 by 1 plus half 1 by n square
minus 1 by 8 1 by n to the power 4 plus dot 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 and last minus n. So this n will cancel out and we will left with only 1 by 2 into 1 by n. Yes, we have to multiply n. That's why this will remain 1 by n minus 1 by 8 1 by n to the power 3 plus dot dot dot. Okay. So we are simplifying our problem series into a series like this, and we are saying that कि हमारे पास एक फर्स्ट में 1 by n का सीरीज आ रहा है, ठीक है? So we will consider our inspection series Bn as equal to 1 by n. ऐसा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग ये लिमिट फॉर्म निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by Bn, ठीक है, तो क्या होगा 1 by n से हम इस पूरे सीरीज को डिवाइड करेंगे, पहला जो टर्म होगा वो 1 by 1 by कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by Bn 1 by 2 1 by n minus 1 by 8 1 by n cube plus dot 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 divided by 1 by n limit n tends to infinity. डिवाइड करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास लिमिट n tends to infinity half minus 1 by 8 n to the power 4 plus dot 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 dot. ये सारे टर्म्स n की वजह से 0 हो जाएंगे, 1 by 8 1 by n to the power 4 n की वजह से 0 हो जाएंगे, it will left with only half which is not 0 finite number. Clear? So ये जब हमारा हो रहा है, अब हम आते हैं इसमें फिर से, यहां हम लोग कर ले क्या, जो Vn है this is 1 by n summation Vn summation 1 by n. We have took this. Okay, अब हमें पता है कि ये क्या है, डाइवर्जेंट है. This series is divergent for p equal to 1. Remember this. For n to the power p equal to 1, this is divergent. So अगर ये लिमिट हमारा हाफ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, we can say easily about this infinite series also that this is divergent. Okay, any question? नितेश कुमार. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर, एक बार फिर से बता दीजिए ना ये डाइवर्जेंस जो किए हैं अभी यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन में. अच्छा देखो, मैंने अभी तक क्या बताया, तुम ये सुनते रहो और जो कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर पीछे पूछना. मैंने क्या बताया कि हमें हमारे पास दो सीरीज है un और vn. ओके, यस सर. un जो है हमारा अननोन सीरीज है लाइक दिस एग्जांपल, और vn जो है हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है. यस सर. नाउ इसके बारे में हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट है, ठीक है. यस. un को हम क्या कर रहे हैं, सिंपलीफाई करके एक ऐसी सीरीज में ला रहे हैं जहां पर कि हम मतलब कि इसको कैलकुलेट कर सके लिमिट फॉर्म में, ठीक है. अब देखो यहाँ पे un और vn को डिवाइड करें तो जो फर्स्ट 1 by n का टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा इसका जो कोएफिशिएंट है वही बचेगा सिर्फ, ठीक है. ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको इस जो कंडीशन है इससे सेटिस्फाई कराना है. जब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मतलब ये सिंपलीफाई होना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब वेग vn नहीं ले सकते हैं सच दैट कि मतलब हमारे पास ये जीरो नंबर आ जाए, इंफिनिटी चला जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है. बात समझ में आया? यस सर. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 by n लिखे और इसको जब कैंसिल आउट किया तो हाफ जो कोएफिशिएंट है वो हमारा बच गया और हमारा जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है. अब ये जो सेटिस्फाई हुआ तो हमें अब अगला सिर्फ इसका कंक्लूजन जो है उस पार्ट को यूज कर लेना है कि मतलब हमारे जो चूजन सीरीज है अगर वो मतलब डाइवर्जेंट है तो हमारा जो प्रॉब्लम सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट होगा. यस सर. ठीक है. यस सर. नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं. अच्छा, आशुतोष कुमार पांडे. गुड मॉर्निंग सर.
हाँ, गुड मॉर्निंग आशुतोष। सर जो समेशन Vn इज इक्वल टू 1/1 है वो सपोज किए कि क्वेश्चन में ऑलरेडी है। नहीं, उसको हमें मतलब स्मार्टली पिक करना पड़ेगा। Vn जो है वो हमें लेना पड़ेगा। और ये देखो, ये तुम पूछोगे कि हम कैसे जज करेंगे कि Vn को क्या कंसीडर करना है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें से खुद कंक्लूड करना आ जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अगर तुम कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुमको खुद मतलब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमें, अगर हमारा जनरल टर्म UN अगर इतना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग Vn हमको इतना लेना पड़ेगा। हम लोग एक तो एग्जांपल और इस तरह का देखेंगे, लेकिन Vn हमें जज करना है। ओके सर। अनमोल कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनमोल। सर बोल रहे थे कि सर ये जैसे कि आप बोले ना सर Vn डाइवर्जेंट है। हाँ, ये सर, तो सर इससे ये मतलब कि इससे छोटा ना सर UN है सर, तो वो फिर डाइवर्जेंट कैसे बोल सकते हैं सर? अच्छा, तुम ये कैसे जज करेंगे कि यहाँ पे ये UN छोटा है या नहीं? ये सीरीज को देख के बता सकते हो कि हमारा ये Vn से छोटा होगा। ये 1/2 1/n है। इसका सेकंड टर्म हम सिर्फ लिखे 1/8 1/n क्यूब। इसका थर्ड टर्म और इसका बाकी जनरल टर्म तो लिखे ही नहीं है। इन जनरल ये हमारा इस स्ट्रक्चर का है। इसको तुम देख के कह सकते हो कि 1/n से छोटा है सर। लेकिन सर ये नीचे वाला को सर देख के बोल सकते हैं ना कि सर n अगर मतलब ग्रेटर देन 1 है तो मतलब ये सर टर्म छोटा होगा वो 1/n से। नहीं, यहाँ पे माइनस साइन भी इसका प्लस है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। ये मतलब एक तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है और हम सिंपल 1/n सीरीज से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लिमिट फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ये पॉजिटिव नंबर है। एक बार ये नेगेटिव से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, अगला टर्म ये पॉजिटिव आएगा तो छोटा हो जाएगा, तो बड़ा छोटा होने लगेगा। हम उसको नहीं कंपेयर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर लेकिन सर वो, हाँ सर ठीक है सर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट फॉर्म यूज करते हैं और इस अपने जो हमारे पास जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं जल्दी। देखो, एक सीरीज है, एग्जांपल 1/2 प्लस x स्क्वायर 3√2 प्लस x टू द पावर 4√3 प्लस डॉट 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 और एक और टर्म x टू द पावर 6 5√4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सीरीज है, इसको हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है हमारा, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें इस फॉर्म में का सीरीज दिया हुआ है तो इसका जनरल टर्म बहुत ही ध्यान से लिखना है, ठीक है। जनरल टर्म मतलब क्या, इसका UN, ठीक है। सो यहां पर सॉरी, यहां पे ये x नहीं सॉरी x सही है, दिस इज 1 x टू द पावर 0 दैट इज 1। सो देखो यहाँ पे x का जो पावर है वो 0 2 4 6 ऐसे रेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, x टू द पावर 2n माइनस 2। सही है, n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इट विल बिकम 0, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 2 और इस तरह से, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, सो इट विल बिकम n प्लस 1, ओके। और यहाँ पे ये सीक्वेंशियली फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 3, इससे स्क्वायर होगा n, ओके। ये जो जनरल टर्म को लिखने का तरीका है, वहां अगर गड़बड़ी किए सो इट विल लीड टू द, मतलब इसका पूरा प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू वेरी मच ओके। सो नेक्स्ट एक और मेथड हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर UN इतना है तो UN प्लस 1, मतलब इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, x टू द पावर 2n प्लस 2 बाय सॉरी x टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय n प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। ये होगा, मतलब कि UN इतना है तो जहां जहां n है वहां पे हम सिंपली n प्लस 1 पुट कर दिए, ठीक है। हमारे पास एक मेथड है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN plus 1 by UN is equal to this divided by this। ये कितना हो जाएगा, n
limit n tends to infinity n plus 2 square root of n plus 1 x to the power 2n x to the power 2n minus 2 divided by so you can numerator x to the power 2n minus 2 by n plus 1 divided by इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x to the power n plus 1 by n plus 2 x to the power 2 ये हमारा आएगा n plus 1 स्क्वायर रूट ऑफ n जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा और n plus 2 स्क्वायर रूट ऑफ n plus 1 यहाँ आ जाएगा एंड दिस विल कैंसिल आउट टू x स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे इस टर्म को फिलहाल अभी यूज कर रहे हैं, वी विल डिफाइन इन नेक्स्ट क्लास, ये मैंने कवर नहीं किया है अभी, बट वी विल सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ आवर लास्ट मेथड। सो ये हम निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by n 1 plus 2 by n स्क्वायर रूट के अंदर 1 by 1 plus 1 by n and x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिकॉज ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n का जितना भी टर्म्स है वो सारा जीरो हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 by 1 into square root of 1 which is equal to simply x स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है। सो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि इट इज अनदर रिजल्ट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये जो लिमिट है वो x स्क्वायर आ रहा है और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि अगर इसका जो वैल्यू आता है, अगर दिस x स्क्वायर is greater than 1 then it is convergent, when x square is less than 1 then it is divergent, when x square is equal to 1 it is टेस्ट फेल। जस्ट इसको भी हम लिख देंगे बाद में, जब भी हम इस तरह का टर्म लिखते हैं n plus 1th टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमारे पास जो भी आउटपुट वैल्यू आया अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर वो लेस देन 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगा, अगर वो इक्वल टू 1 है if x square is less than 1 then it is convergent, when x square is greater than 1 then it is divergent, or when x square is equal to 1 then test fail। इसको हम लोग कहते हैं रेशियो टेस्ट। ठीक है, इसका स्टेटमेंट बुक में है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो ये एक छोटा सा सोचने वाली बात है कि अगर जो बड़ा वाला नेक्स्ट वाला टर्म जो है डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, अगर ये लेस देन अगर 1 आएगा मतलब कि वो एक तरह से जो डिवीजन है वो छोटा होता चला जा रहा है। बस समझना है, मतलब कि जो नेक्स्ट टर्म है अपने प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और ये जो वैल्यू है अगर जो भी जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो अगर उससे छोटा 1 से छोटा है, मतलब ये जो फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो 1 से छोटा है मतलब ये जैसे जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा वो और छोटा 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 होते चला जाएगा और वो 0 को कन्वर्ज करेगा, मतलब कि एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है कन्वर्जेंट है। अगर ये जो रेशियो है कि n plus 1th टर्म by un जो nth टर्म है ये अगर बड़ा होता चला जा रहा है तो इसका मतलब दिस इज डाइवर्जेंट, और फॉर x equal to 1 इस टेस्ट में फॉर द रेशियो टेस्ट इट इज फेल। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में जहां ये टेस्ट फेल हो रहा है, अच्छा लेट मी कंप्लीट देन आई विल सी दिस। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो ये कि इस प्रॉब्लम में x स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ये x स्क्वायर अगर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन होगा तो डाइवर्जेंट। यहाँ पर हमारा टेस्ट फेल हो रहा है दिस रेशियो टेस्ट, यहाँ पे हम लोग ये कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करेंगे।
कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास un जो है, un क्या था, दिस x हमारे पास क्या है, x² = 1। यहाँ हमारा टेस्ट फेल हुआ है, तो अगर हम जब x² = 1 यहाँ पुट करें इस वाले में x² = 1, तो हमारे पास सिंपली ये टर्म बचेगा 1/n + 1 1/n + 1 स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे x² = 1 जहाँ टेस्ट फेल किया है उसको कंसीडर कर रहे हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे इसको जो लिख सकते हैं 1/n + 1 to the power n to the power half, this is equal to 1/n to the power 3/2 plus n to the power 1 plus 1/2, that is 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें vn एक कंसीडर करना है, जो हमारा मतलब मेथड था। यहाँ पर vn को n to the power, बताओ हम लोग क्या लिखे सच दैट हम इसको कंपेयर कर सकेंगे। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी आईडिया कि अगर हमारे पास ये un है, ठीक है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऐसा vn क्या कंसीडर करेंगे, और हमारे पास vn कंसीडर करने का यही है n to the power p। p को हमें कंसीडर करना है कि क्या ग्रेटर देन 1 लेना है कि लेस देन 1 लेना है, या फिर p का कोई ऐसा वैल्यू सोचना है सच दैट कि हमारे यहाँ पे इसको निकाल सके। एनीवन? सुमित कुमार? सब p लेस देन 1 लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलो p लेस देन 1 लेते हैं। सुमित सेज दैट हम लोग p लेस देन 1 लेते हैं। लेस देन 1 कितना कंसीडर करें? चलो एक बार हम लोग 3/2 लेके देखते हैं। ठीक है, 3/2 लेने का मेरे पास मकसद है क्योंकि हमारे पास ये दो टर्म है यहाँ पे, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है जैसे हमारा पहला वाला हुआ था। ठीक है, सो अगर हम यहाँ 3/2 लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट द लिमिट n tends to infinity un by vn, this is equal to limit n tends to infinity 1/n plus 1 to the power n by 1/n into 10, n to the power 3/2 का मतलब n into 10, ओके, 1 plus half। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट और n गया ऊपर, सो लिमिट n tends to infinity n by n plus 1 and this is equal to 1। ठीक है, क्लियर? दिस इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, हो रहा है? सो हमारे पास क्या था, हमें यही चाहिए था, इसलिए हमें नॉन जीरो फाइनाइट नंबर चाहिए अपने कंट्रोल, अपने मेथड को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो ये आ गया। अब देखो हमारे पास इसके इस पार्ट पे हमें पता है कि हमने जो चूज किया है दिस इज 3/2, दिस इज डाइवर्जेंट, सिंस 3/2 इज ग्रेटर देन 1 है, सो हमारा ये जो सीरीज है ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये जो सीरीज है ये भी डाइवर्जेंट होगा। Oh, sorry, I'm very sorry, यहाँ पे 3/2 is greater than 1, greater than 1 पे क्या था, ये कन्वर्जेंट होगा। सर n का पावर 2/3 समेशन ना डाइवर्जेंट होता है सर। हाँ सर n का पावर 2/3 समेशन ना डाइवर्जेंट है, अगर p का वैल्यू ग्रेटर 1 रहेगा तब तो वो कन्वर्जेंट होगा। हाँ वही कन्वर्जेंट, और यहाँ पे 3/2 मैंने मिस्टेकनली यहाँ पे मैंने कर दिया, 3/2 is greater than 1, so this is convergent, okay। सर तो vn भी तो कन्वर्ट होगा ना, क्योंकि वहां पे n पावर p, तो p क्या पे मतलब ग्रेटर देन 1। क्या तो डाइवर्जेंट जो लिखे वहां पे vn = 1/n का पावर 3, उसका आप डाइवर्जेंट है ना वहां पे। नहीं ये डाइवर्जेंट नहीं लिखे, गलत, ये कन्वर्जेंट है। एंड ये 3/2 को देखो p greater than 1 के लिए कन्वर्जेंट बनाइए, 3/2 is greater than 1, it is convergent। ये हम गलती से वहां पे डाइवर्जेंट नहीं लिखे, ओके। रवि कुमार? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि।
सर पिछले स्लाइड में कीजिए ना सर, एक चीज समझ में नहीं आया था। पिछले स्लाइड में ई- और ये जो सर UN +1 किया है ऊपर में राइट हैंड साइड में, और ऊपर इधर राइट साइड में सर, और राइट, हाँ उसमें UN +1 उधर किया है ना सर, हाँ हाँ, ऊपर में सर। ये वाले हाँ तो ये ऊपर वाला टर्म सर 2n कैसे हो गया सर? देखो यहाँ x to पर, the power, हाँ देखो इसको देखो, इसको हम nth टर्म तो कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब जो n+1 टर्म होगा क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां n+1 पुट करो। यहाँ पे n+1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 into n+1 minus 2, this is equal to 2n minus 2 plus 2, sorry plus 2 and minus 2, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ तो n बचा। ओके सर, ओके थैंक यू। लाइकवाइज हम लोग जहां जहां n रहेगा वहां वहां n+1 पुट करके हम उसका नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। So this is all for tonight. This is already very much late for the next class. Okay. So we will discuss and also see problems in BS grade 1 of infinite series, and you can apply this comparison test and ratio test also. Okay. So just after 1 minute, I am going to start the class of computer science and IIT vector space of linear algebra. Okay. Module 5, mathematics 1. So I suppose that there is only computer science and IT students are here of mathematics 1 semester 1 to continue with the topic vector space that I last discussed. In our previous classes. Any one of you who are belong to computer science or IT branch, raise your hand, please. Ayush, Anshu. Yes, sir. Ayush, you belong to which branch? Ayush. Sir, CSE से sir. Okay, ठीक है. So let me. ये आप last class में थे? Hello, Ayush. Are you in the present at the last class? Okay. Bittu Kumar, yes, I remember. Bittu Kumar. Yes, sir. Good morning. Good morning, Bittu. ये आप last class में थे? Yes, sir. Did you remember what I discussed in the last class? Yes, sir. About subspace. Subspace. Last Yeah. subspace. Okay. So let me start with that. Let's see.
यस हेलो हाँ वो टेस्ट हुआ था इसमें रेशियो टेस्ट में देखो कैसे 2:1 हो जाएगा तो टेस्ट होता है तब वो काम करेगा। हाँ तो टेस्ट फेल के हम लोग डिस्कस किया था। हाँ वहाँ पर तो लोग so in the last class we have seen the subspace. So we have discussed the vector space of the structure of line R3R and subspace of this as many of the subspace we have designed and जैसे कि S1 अगर हम एक सबस्पेस ले रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट टर्म x है तो 0 0 है दिस इज एग्जैक्टली द x एक्सिस सो दिस इज द x एक्सिस और देखो सबसे पहले तो वेक्टर सबस्पेस होने के लिए हमें क्या चेक करना है कि उसमें ओरिजिन होना चाहिए ओरिजिन मतलब कि जीरो वेक्टर सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड ओरिजिन जीरो वेक्टर उसमें होना चाहिए सो इन दिस स्ट्रेट लाइन अगर x 0 पुट करें तो ये सेटिस्फाई करता है और दूसरी बात ये जो स्ट्रेट लाइन है वो मतलब कि ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब कि उसमें जीरो वेक्टर है तो ऐसे वो सारे स्ट्रेट लाइन जो कि मतलब ओरिजिन से पास करे वो सारे इस R3 के सबस्पेस होंगे ठीक है और इसी तरह से सेकंड भी जो है x y 0 ले रहा है यहाँ x y की जगह 0 0 ले लो दिस बोथ बिलोंग टू रियल नंबर सो ये क्या होगा ये xy प्लेन होगा और वो प्लेन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये भी एक सबस्पेस होगा उसी तरह से दो ट्रिवियल सबस्पेस हमने देखा R3 का क्या क्या है एक जीरो वेक्टर खुद वो खुद में एक पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है जो कि इसका सबस्पेस है R3 का और R3 जो है खुद इन दोनों को हम ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं और बाकी इसको छोड़ करके अगर कोई भी सबस्पेस अगर हम लोग इसका निकालें तो सारे इसके नॉन ट्रिवियल सबस्पेस होते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें मतलब कि हम लोग कितने तरह के सबस्पेस R3 में निकाल सकते हैं ठीक है थिंक ऑफ R3 हैज हाउ मेनी सबस्पेसेस आर देयर तो अगर हम देखें फॉर दिस प्रॉब्लम ये हमारा स्पेस है R3 x y z ठीक है हमने क्या देखा कि ये एक वेक्टर स्पेस है जीरो वेक्टर जिसका कि डायमेंशन फिलहाल अभी हम लिख दे रहे हैं डायमेंशन इट इज 0 ठीक है वो सारे स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करें ये सारे सबस्पेस हैं जिनका डायमेंशन है 1 ठीक है इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है s1 = x 0 0 such that x belongs to r x एक्सिस पर इस तरह का और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि s2 x y 0 such that xy belongs to r and x plus 2x plus 3y equal to 0 मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसा x और y का कॉम्बिनेशन such that is satisfied this equation 2x plus 3y equal to 0 so वो जो इक्वेशन होगा वो 0 से पास करेगा so this will also a subspace of R3 ऐसे ही हम लोग कोई भी इस तरह का लिख सकते हैं s3 equal to x 0 z such that 5x plus 7z equal to 0 मतलब ये इक्वालिटी 0 होना चाहिए मतलब 0 0 इसमें जब सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज सपोज टू बी इक्वल टू 0 सो दैट कि हमारा जो 0 वेक्टर है वो इसमें आ जाए ओके सो इस तरह के सारे स्ट्रेट लाइन जो है जो 0 से पास करेंगे वो वन डायमेंशनल सबस्पेस हैं R3 के
Is there any question? If you do have, please raise your hand. Okay. So next, अब हम बात करते हैं 2-dimensional subspace की। अच्छा, ये प्रॉब्लम है क्लास में। अगर जिस तरह से हम लोग जीरो ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन को देख रहे हैं, उसी तरह से अगर कोई भी ऐसा प्लेन है, एनी प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू, मतलब कि ये जो प्लेन है इस जीरो को कट कर रहा है, ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? एनी एस को एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड belongs to R3, sorry R, and 2x plus 3y minus 5z equal to 0. This is the equation of plane. और equal to 0 मतलब क्या? कि अगर हम लोग x, y और z की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो is equal to 0 मतलब कि ये 0 वेक्टर इस प्लेन में है. So this is a 2-dimensional subspace of R3. ओके, क्लियर? तो ये हुआ इंस्ट्रक्शन कि हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास इस तरह का सबसेट दिया हुआ है तो R3 हो चाहे Rn हो, ठीक है, Rn भी अगर है तो हम लोग वहां पे इसका सबस्पेस फाइंड कर सकते हैं कि वो पहली बात तो वो 0 1 2 डायमेंशनल है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है कि मतलब सबस्पेस है कि नहीं है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि 0 सेटिस्फाई करके देखो। अगर 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो एक तो कम से कम है कि मतलब वो हो सकता है सबस्पेस। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या कहा था कि हमें क्या करना है कि इस सबस्पेस से एक W1 और W2 लेना है S4, ठीक है, और एक कांस्टेंट लेना है R का, सच दैट KW1 प्लस KW2 शुड बिलोंग टू S4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तब हम सीधे कहेंगे कि ये जो है सबस्पेस है R3 का, ठीक है। तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम पे जो मैंने पूछा था, ये हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राई टू थिंक वेदर दीज आर सबस्पेस और नॉट? Anyone raise your hand if you have think about this or apply the method of subspace, finding subspace। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इसमें कोई भी इस तरह का एलिमेंट ले रहे हैं तो कैसा होगा x 0 z, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ये, पहली बात तो ये सबस्पेस होगा, ठीक है, दिस इज सबस्पेस ऑफ R3, ओके। दूसरी बात प्रूफ करने के लिए अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे x1 0 z1 और दूसरा एलिमेंट लेंगे x2 0 z2, एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, और देखेंगे कि ये जो है मतलब कि इसका एलिमेंट है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू kx प्लस 1 प्लस kx2 कॉमा 0 कॉमा k z1 प्लस k z2, ये तो देखो इसका बीच वाला एलिमेंट 0 है, so this also belongs to S4। so that's why by the definition of subspace finding ये जो है S1 ये हमारा सबस्पेस होगा, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, दिस वन, यहां पे क्या है कि हमारे पास वो सारे R3 के एलिमेंट 3 टपल एलिमेंट सच दैट कि x into y जो है z के बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, और S2 ये सबस्पेस है कि नहीं,
सो इसका एलिमेंट कैसा होगा, k टाइम्स x y xy, z के बदले डायरेक्टली यहाँ पे xy ले रहे हैं। सो पहला एलिमेंट हम ले लेते हैं x1 y1 एंड x1 into y1 प्लस x2 y2 x2 into y2, ठीक है, मतलब this belongs to this s2, this belongs to this s2 and this k belongs to the field r। ओके, ये समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो और क्लियर करके हम लिखेंगे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द वे आई एम राइटिंग हियर, एनीवन? ओके, या फिर इसको हम शॉर्ट ऐसे लिख देते हैं, k w1 plus w2 इस तरह से, k w1 plus k w2। I am checking whether this element is belonging to this s2 or not। So w1 w2 की जगह हम लोग क्या लेंगे, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। So this is k, इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा x1 plus x2 y1 plus y2 and x1 y1 plus x2 y2, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आया। अब आगे k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k टाइम्स x1 k x2 k y1 k y2 k x1 y1 plus k x2 y2। और ये देखो, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट द सेम एज फॉर द एलिमेंट ऑफ दिस। यहां पे क्या होना चाहिए था, इस लास्ट एलिमेंट में होना चाहिए था x into y, मतलब कि x1 y1 into k times, तो इसका थर्ड टर्म में लिख देते हैं, this third term should be equal to k1 x1 into k2 x y1, sorry k1 y1 plus k x2 plus into k y2। ये हमारा थर्ड टर्म होना चाहिए था, मतलब कि k जो है x1 के साथ भी k y1 के साथ भी, लेकिन अगर हम इसको इसके साथ क्लब करें तो y हमारा सेपरेट हो जा रहा है, और अगर this is likewise the second term, so this is not belonging to this same, the resultant of this is not belongs to S2, so that we can easily say that this is not a subspace of R2। Similarly, likewise यहाँ पे तो देखो सबसे आसान है कि यहाँ पे x, y और z equal to 1 है। अगर हम 0 0 0 पुट करें this is equal to 1, मतलब कि यहाँ पे ओरिजिन ही सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब कि क्या है कि इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है, तो this is not a subspace, this is not a subspace, this is a subspace। Likewise ये भी क्या है कि x plus 2y plus 3z equal to 0, मतलब this is a equation of a plane which is passing through origin, so this is also surface of R3। Okay, so now let's proceed to our next topic। So we have seen till now vector space, subspace, now linear span or linear combination। So
if B is a vector space over field F such that B1, B2, B3 dot 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 Vn are vectors of Vn, मतलब कि these are vectors and K1, K2, K3, Kn belongs to this field F, then K1 B1 plus K2 B2 plus Kn Bn is called the linear combination of vectors B1 to Bn. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कहते हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग फील्ड से कुछ कांस्टेंट्स लेंगे, स्केलर्स लेंगे, k1 k2 या इस तरह से, दिस इज द नोटेशन, and we are multiplying simultaneously from the first scalar and vector and adding them. So this structure k1 b1 plus k2 b2 plus dot 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 kn bn is called the linear combination of the vectors v1 to vn. Okay. And next thing, linear span. First, second, third, fourth. ये सारे वेक्टर्स अगर मान लो हमारे पास V जो है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ये सारे वेक्टर्स हम इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है, और इन वेक्टर्स का एक ऐसा सबस्पेस जिसमें ये सारे वेक्टर्स आ जाए, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सबस्पेस such that it contains all these vectors, then that is called the linear span of this. Okay, so this linear span is what? Linear span. Let V W is equal to set of vectors V1, V2, Vn of this. W is a set of vectors of this vector space, then linear span L of W is the smallest subspace of V that contains all vectors of W. ठीक है, सो लीनियर स्पैन का मतलब क्या हुआ कि लीनियर स्पैन ऑफ W इज डिनोटेड बाय L ऑफ W, और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल सबस्पेस है जिसमें कि ये सारे वेक्टर्स लाई करते हैं, मतलब कि उसमें है, ठीक है, और अगर ये सबस्पेस है मींस LW इज अ सबस्पेस, मींस वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F. ओके, एंड दिस इज अ सबस्पेस ऑफ V over F. Okay, linear span of this set of vectors will be a subspace of this whole vector space. Any question? Now next, linear dependence
So if you are not following anything, you can ask right now. Till now we have discussed about vector space, vector subspace, linear combination of vectors, and linear span of set of vectors. Any one of you, if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, Sudhanshu, thanks for asking. Yes, Sudhanshu. सर सब स्पेस में कंपेयर कैसे करेंगे स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट वाला, एक बार एग्जांपल से बता दीजिएगा। स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट से, ठीक है। देखो चलो एग्जांपल पहले कर लेते हैं इसका। एक छोटा सा, जैसे R3 पे हम लोग बात कर रहे थे, तुम अभी लाइन में रहना, म्यूट मत करना, ठीक है। हम लोग R3 का वेक्टर स्पेस देख रहे थे और हम लोग इसको विजुलाइज कर सकते थे, ठीक है। सो अगर हम मतलब कि ये हमारा R3 है और इसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं। हम सिंपली इसका एक वेक्टर उठाते हैं, कौन सा, सिंपली 1 2 3, ठीक है। एक वेक्टर ले रहे हैं, ये वेक्टर क्या होगा, ये समवेयर लाइक में, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है एंड दैट इज 1 2 3 और ये वेक्टर है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अ W which contains only this vector, okay. Now अब अगर हम कहें कि linear span of this W, this linear span of this W will what, हम लोग इसको इस वेक्टर को एनलार्ज कर रहे हैं एक तरह से, मतलब कि इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहे हैं सच दैट कि AW1 plus AW2 belongs to this again W, वही सबस्पेस का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब कि हम लोग एक तरह से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं और इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने भी सारे वेक्टर्स होंगे इस तरह के, वो सब मतलब इसमें आ जाएंगे। सो दिस लीनियर स्पैन ऑफ दिस W will be a subspace of this R3 over R। अब देखो इस विजुअलाइजेशन में कि मतलब हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर है, इसको सबस्पेस बनाना है, ठीक है। एक वेक्टर है, इसको सबस्पेस बनाना है R3 का, और हमारे पास पॉसिबल सबस्पेस का फॉर्मेट क्या था, जीरो वेक्टर जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल प्लेन और थ्री डायमेंशन में पूरा का पूरा स्पेस। अगर हमारे पास एक ही वेक्टर है और अगर इसका स्पैन करेंगे तो देखो ये जो होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। सुधांशु, यस सर। सिमिलरली अगर मान लो कि हम यहाँ पे ये जो है ये W1, अगर हम दूसरा एक W2 लेते हैं, इसमें दो वेक्टर ले लेते हैं, मान लो ये x1 y1 z1 और x2 y2 z, ठीक है। सेम इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अब दो वेक्टर है और दो वेक्टर का लीनियर स्पैन लेना है। मतलब मान लो, चलो इसका मतलब पहला मान लेते हैं यही है 1 2 3 और दूसरा ये है 3 2 1। मान लो कि दूसरा वेक्टर कुछ समवेयर इधर होगा 3 2 1, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर है और इसको इतना ऐसा बड़ा करना है सच दैट कि वो R3 का सबस्पेस हो जाए। तो वो क्या होगा, k टाइम्स 1 2 3 प्लस k1 टाइम्स प्लस k2 टाइम्स 3 2 1 should belongs to this linear span of W2, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कांस्टेंट टाइम्स दिस वेक्टर, कांस्टेंट टाइम्स दिस वेक्टर, अगर हम ये लें, ये स्ट्रक्चर देखो कि हर बार अगर हम k1 और k2 को वैरी कराएं बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या करेगा, एक पूरा का पूरा प्लेन जनरेट करेगा और उस प्लेन में ये दोनों वेक्टर रहेंगे। ओके सर। है सुधांशु? सो देखो ये हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा प्लेन होगा, ये एक ऐसा प्लेन होगा सच दैट कि वो ओरिजिन से पास करेगा और ये दोनों वेक्टर जो है वो इस प्लेन में रहेंगे। तो हमारा मतलब क्या होगा, इन दोनों का लीनियर स्पैन क्या हो गया, linear span of this W2 is a subspace of this R3 और ये linear span क्या हो गया, वो पूरा का पूरा प्लेन जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। ओके, यस सर।
इसी तरह से देखो, क्योंकि हम लोग R3 को रिलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, हम लोग इसके साथ अलग अलग जो वेक्टर स्पेस होगा ना, वहां पे भी यही काम करना है। जैसे सेट ऑफ मैट्रिसेस जो हम लोग लिए थे, सेट ऑफ मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस, या फिर इसके बाद भी और तरह का हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे भी सेम इसी तरह से विजुअलाइज करना है। जब हम लोग कोई सेट ऑफ वेक्टर लेंगे तो मतलब उसमें क्या होगा, सेट ऑफ मैट्रिसेस को लेंगे, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, और उससे हम लोग लीनियर स्पैन निकालेंगे। लीनियर स्पैन क्या होगा, वो मिनिमम पॉसिबल, यहाँ पे देखो ये जो प्लेन है वो क्या है, वो मिनिमम पॉसिबल स्पेस है जो कि इन दोनों वेक्टर्स को अपने अंदर रखा है, और वो पूरे वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है। ठीक है, ओके सर, यस सर। ओके, एनी क्वेश्चन, एनीवन एल्स? Kindly raise your hand if you don't understand this. So, this linear dependence and independence. It says कि अगर हमारे पास मान लो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं v1, v2, v3, तीन वेक्टर से समझते हैं, तो ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसके डेफिनेशन पे जाने से अच्छा है पहले इसको देखते हैं। हमारे पास मान लो कि हमारे पास तीन वेक्टर है v1, v2, v3, और these look like somewhat like this। ठीक है, ये v1, v2 और ये स्पेस नहीं है, इन एडिशन v3। ठीक है, सो ये तीनों हैं जो है वेक्टर्स, ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि पहले बार हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, k1w v1 plus k2 v2। This linear combination will generate a plane. So let us suppose this is the plane. This is the plane generated by this linear combination. ठीक है? Now if this V3 is belong to this linear combination for some k1, k2 belongs to this real number field, then we say that this v1, v2, v3 are linearly dependent। मतलब क्या हुआ, जो थर्ड वेक्टर है वो उस प्लेन पे लाई कर रहा है, या फिर उस लीनियर स्पैन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन में लाई कर रहा है जो कि v1 और v2 से जनरेट हो रहा है। और ये किसी से भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पहला दूसरा लिए, अगर v1 और v3 के प्लेन पे अगर v2 लाई करेगा तब भी हम कहेंगे कि मतलब वो ये जो है, इसको और अच्छे से देखने के लिए कर सकते हैं। मान लो कि ये दिस इज द प्लेन जनरेटेड बाय generated by v1 and v2। ठीक है, और अगर मान लो कि जो थर्ड वेक्टर v3 है वो भी इसी में लाई करता है, तो we will say v1, v2, v3 are linearly dependent। लेकिन अगर इस प्लेन से बाहर अगर कोई है v4, तो हम लोग कहेंगे v1, v2 and v4 are linearly independent। बात समझ में? Anyone? Is it clear कि हमारे पास v1 और v2 से जनरेटेड, मतलब जनरेटेड करने का मतलब the linear span of the vector v1 and v2 minimum possible space, that is a plane, और इस प्लेन में अगर v3 लाई कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि v1, v2, v3 are linearly dependent। और अगर v4 जो है इस प्लेन से अलग है, that is not lying in this plane, we say that v1, v2, v4 are linearly independent। Okay, this is the basic concept of this dependency or independency। So now
we will continue this in the next classroom, and today I will give you the notes for this vector space, and you will see lot many problems to understand this topic of linear algebra or vector space. Now next there will be the physics class continued by the physics faculty after just 2 minutes. Okay. Good morning, everyone. Only 157 students. Great. Okay, so I have already completed my part. I mean, I was assigned only to teach you interference and diffraction. So those are completed. But today we'll have the problem solving class, like tutorial class. Okay, so we will solve few problems based on single slit and double slit diffraction. Because up to interference, you have already learned all the things because you have given the midterm exam also. So you know how to form a numerical and how to attempt the numerical. How can you solve the numerical question based on superposition of waves, etc. So today we'll do numerical questions based on diffraction, single and double slit diffraction. Okay. So let's start.
first question. Should I write the whole question on the blackboard, on the whiteboard? I think I should. So that first you will try to solve the question and after that we'll discuss the solution. Okay. So question number 1. The diffraction pattern due to single slit is observed at 1 meter focus distance of the lens. The width of the slit is 0.04 mm.